students. How are you? You all are fine. I hope that today welcome to my YouTube channel, that is the English language learning. Welcome to all of you. Previously we have started to learn about the English and the basic concept of the English. Now from there we are going to learn a very important topic, that is the welcome to all of you again. I hope you are understanding everything. We are getting all the information properly, and you will learn a better English for this. Today, our topic is modal auxiliaries or modal verbs. Friends, it's a very important topic in English language, because if you observe that, if you observe the near about 70 to 80% of language is used on the base of modal auxiliaries. Before that we have seen about the tenses. The tenses are very important, essential part of the language, but still the most important is the modal verb. If you don't know the modal verbs, then it's very difficult to understand the language, or too difficult the use of any language. So now you have to learn the modal verbs first. Just see what is the modal auxiliaries, or we call it modal auxiliaries also. It is a modal verb also. Let's see what is the modal auxiliaries or modal verb. What is the concept behind it? The most important question, what is modal verb? The modal verbs are here. We can see this: can, could, may, might, must, shall, should, will, would, or ought to. Why we are using the modal verbs? Friends, already I told you that verbs are divided into a few parts: main verbs and the helping verbs. Helping verbs are divided into to be and the modal verbs. Modal verbs are specially, they have their own meanings. They can stand properly. They can stand with their own particular meaning. They don't have need to take the meaning of any word for this. जैसे हेल्पिंग वर्ब होते थे, हेल्पिंग वर्ब को किसी हेल्प करते, हेल्पिंग वर्ब को खुद का मीनिंग स्टैंड नहीं होता प्रॉपरली. बट स्टिल कैन जो मॉडल वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब्स कैन स्टैंड ऑन देयर ओन बेस, इंडिपेंडेंट होते हैं. जैसे कि दे आर ऑक्सिलरीज वर्ब एंड दैट प्रोवाइड एडिशनल एंड स्पेसिफिक मीनिंग टू द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंसेस. दे गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग, वेरी इसेंशियल मीनिंग टू द मेन वर्ब. जैसे मेन वर्ब होता है, तो मेन वर्ब हमने जैसे पार्ट से टेंसेस देखे, तो टेंसेस का जो सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस एक लिमिटेड मीनिंग लेकर ही आता है, लिमिटेड मीनिंग ही होता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ वेरी अनेबल टू डिलीवर द प्रॉपर मीनिंग, what we want to say properly to that particular person in communication. Then it's a limitation with the tense. तो मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते हैं, ये वो स्पेस जो होता है, वो स्पेस हमें खुला करके देते हैं. वी कैन गेट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ modal auxiliaries, and they can deliver the perfect and very achievable meaning, which is very important to us. They are give the function of the modal auxiliaries is there. They are giving us additional or specific meaning to the verb. The second information about them is that the modal verbs are sometimes referred to the modal auxiliary verbs because they help other verbs. They are called as a modal auxiliaries also, and it is very important topic in English language. बहुत सारे लोगों को टेंस तो पता होते हैं, टेंस के फॉर्मेट भी पता होते हैं, बट ये मॉडल ऑक्सिलरीज पता नहीं होते, इसलिए वो लैंग्वेज में कहीं ना कहीं कम पड़ते हैं. लैंग्वेज बोलने में थोड़े कहीं ना कहीं झिझक हो जाती है, बिकॉज जो बोलना चाहते हैं वो बोलना नहीं आता है, वहाँ तक वो मैसेज नहीं पहुँच पाता है. Therefore they stopped their communication, they stopped their language. It's very essential part. It is a break, we can say. If you cross this barrier, then definitely it's very easy to you to speak the language. The next important is there, how do we use the modal auxiliaries? सबसे पहला दूसरा सवाल ये आता है कि what is modal auxiliaries? First question. Second question is how do we use them? कैसे यूज़ किया जाता है? सिंपल है, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ होता, एम, इज़, आर, वॉज, वेयर, वैसा कुछ भी नहीं यूज़ होता. तो उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट मीन्स व्हाट? द person or the noun, who is doing the action, जो करता होता है, जो एक्शन का करने वाला होता है, और जिसके लिए वो एक्शन करता है वो होता है ऑब्जेक्ट. और उसी के बीच में पहले जो होता है
वी वर्ब। अब ये वर्ब जो होता है वो क्रिया है, उसकी ये एक्शन है, उसके बीच में एक्शन और कर्ता ये दोनों के बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमें यूज़ करना होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। वो कैसे? वो बीच में आएगा, हमेशा ध्यान में रखिए, वर्ब के बाद वो नहीं आ सकता, वो वर्ब के पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं नंदिनी कुड प्ले द क्रिकेट। सेकेंड एग्जाम्पल इज सुरेश कैन सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे नंदिनी इज़ अ सब्जेक्ट, प्ले इज़ अ वर्ब एंड कुड कैन ये जो है दीज आर मॉडल ऑक्सिलरीज। शुड इज ऑल्सो द मॉडल ऑक्सिलरी हियर। ये 3 सेंटेंस हमें अच्छी तरह से समझा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। उसके फॉर्म्स होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी के कुछ फॉर्म होते हैं, तो उसके फॉर्म के हमारे 3-4 जो स्लाइड है वो उसके ऊपर ही जाएगी। तो हाउ डू देयर द फर्स्ट थिंग इज़ देयर कि उसके साथ कोई एस ई एस नहीं लगता। जैसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वहाँ पे एस ज़रूर लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो ही शी इट इनमें से हुआ, या फिर नेम हुआ तो वहाँ पे हम एस ज़रूर लगाते हैं और ई एस लगाते हैं। बट इन द मॉडल ऑक्सिलरीज देयर इज़ नो एस और ई एस सफिक्स। ओके, देयर इज़ नो डू डज इन द क्वेश्चन जब पूछते हैं तो वहाँ डू डज नहीं लगाते। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर होगा तो वी आस्क डू लाइक दिस वन, तो वहाँ पे जो भी मॉडल ऑक्सिलरी है वही पहले प्लेस पे जाता है, चेंज होता है। जो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू मेक द क्वेश्चंस ये जब बताऊंगा तब ये बात ज़रूर बताऊंगा कि डू डज कब लगाते हैं, व्हेन वी मेक द क्वेश्चन इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड थिंग, व्हेन वी मेक द नेगेटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव क्वेश्चन, दैट टाइम वी यूज़ डोंट और डजंट। और एनी सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस होता है तो उसको हम अगर नेगेटिव में करते तो वी यूज़ डू डज फॉर मेक देम नेगेटिव। नॉट लगाने के लिए डू डज ज़रूरी होता है, एम इज़ आर तो यूज़ नहीं कर सकते, देयरफॉर डू डज वहाँ पे यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल ही कैन स्काई, ही कैन स्किप होता ही कैन स्काई, लेकिन यहाँ पे ही होने के बाद कैन को एस नहीं लगाते। अंडरस्टैंड? एस नहीं लगाते, कैन को कैन ही रहने देना चाहिए। दूसरा जो सवाल होता है कि वुड यू लाइक टू कम विथ मी, ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ओके, वुड यू लाइक टू मी। अब ये यू वुड लाइक टू मी ये सेंटेंस है, बट द क्वेश्चन बनाया कि वुड यू लाइक टू मी, तो इसके साथ नॉट लगाने के लिए डू यू वुड लाइक टू कम विथ मी, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। ओके, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ऐसा डू डज नहीं लगता। थर्ड इंपॉर्टेंट इज दे कांट बी सीरियस, ये सेंटेंस है तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे, दे कांट, कैन को ही नॉट लगाते हैं, डू डज को नॉट नहीं लगाते यहाँ पे। दे डोंट कैन बी सीरियस, ऐसा नहीं होगा। जो भी रेड कलर में जो भी है वो सारा रॉन्ग है, वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म कि उसके साथ कोई भी एस ई एस डू डज डोंट वगैरह नहीं लगता, सीधे उसी को वो बात लगाई जाती है। कैन वो एक वर्ब ही है, इट इज़ अ कंप्लीट वर्ब, मतलब कंप्लीट वर्ब ही है एज इट इज़, बट उसके साथ एस नहीं लगाते, हेल्पिंग वर्ब नहीं है वो। ठीक है, डू डज क्वेश्चन में नहीं लगाते, ये भी एक ध्यान में रखना। और नेगेटिव में डोंट नहीं लगाते, सीधा कांट ही यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट मैंने बॉक्स में जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंसेस, ओके, दिस इज़ वन करेक्ट, दिस वन इज़ करेक्ट एंड दिस लास्ट वन इज़ करेक्ट, बट दिस वन द रेड डोंट कैन बी सीरियस, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं उसमें, जैसे मॉडल ऑक्सिलरी होता है तो मॉडल वर्ब्स डू नॉट हैव इन्फिनिट और इन्फिनेटिव नहीं होता इसके साथ, और आईएनजी वाला फॉर्म भी नहीं लगता। तो इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव मतलब वहाँ पे टू लगाते हैं। ओके, तो मॉडल ऑक्सिलरी में टू ऐसा नहीं लगाते। ओके, जैसे टू बी लगाते हैं तो टू बी के साथ टू आता है, इन्फिनेटिव आता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ ऐसा टू वगैरह नहीं आता, उसको आईएनजी नहीं लगाया जाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे टू कैन, ये टू कैन नहीं आता, कैनिंग भी नहीं आ सकता। टू मस्ट और टू मस्टिंग ऐसा नहीं आएगा। ओके, इसके साथ ना टू लगता है ना आईएनजी लगेगा। तो वर्ब जो हमें पता है, मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ कंप्लीट लाइक अ वर्ब, बट वर्ब को आईएनजी जैसे लगाते हैं वैसे कैन कुड को नहीं लगा सकते, मॉडल ऑक्सिलरीज को आईएनजी नहीं लगा सकते। आप नोट कर लीजिए, आप नोट, आई होप दैट यू आर मेकिंग द नोट्स।
आप नोट पे उतार रहे होंगे और आपको ये ज़रूरी समझना है कि इसके साथ ING नहीं लगाया जाता है, इसके साथ टू नहीं लगाया जाता। फॉर एग्जाम्पल, शी मस्ट स्टडी, ये सेंटेंस है, ओके, शी मस्ट स्टडी, तो उसका हम ऐसा कभी नहीं बनाएंगे कि वो शुड, शी मस्टिंग स्टडी, शी टू मस्ट स्टडी, ऐसा वर्ब नहीं बना सकते। सेकेंड इज दैट वी शुड हैव गॉन द अदर वे, तो हमें दूसरी तरफ से जाना चाहिए था, ऐसा मैं बताऊंगा, जाना है, तो ये दैट कैन बी द करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, ओके। इसके साथ ना टू लगेगा, ना उसको ING लग सकता है, ना उसके साथ आई एम, एम, आर, वॉज, वेयर, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। दे आर यूनिक वर्ब्स, वैसे रहेंगे, ठीक है। ही कुड प्ले फुटबॉल इन द यूथ, इन इज यूथ, ही कुड प्ले फुटबॉल, ये पास्ट के बारे में बता रहा है, तो पास्ट के बारे में बता रहा है, तो वहाँ वॉज, वेयर, डू, डज वगैरह ऐसा कुछ नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा। दैट कुड इज कम्प्लीटली इट्स सेल्फ, वो इंडिपेंडेंट है। द नेक्स्ट वन, मॉडल वर्ब्स यूज अदर फॉर्म, उसका दूसरा फॉर्मेट है, मॉडल वर्ब्स यूज टू अदर वर्ब्स टू कंप्लीट द टेंस। मॉडल वर्ब जो होते हैं वो सेंटेंस को टेंस कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। कैन इज कंप्लीटेड विद टू बी एबल टू, जब कोई क्षमता आप में है, वो क्षमता दिखाने के लिए, वो एबिलिटी दिखाने के लिए, वो लाइबिलिटी दिखाने के लिए, कैपेसिटी दिखाने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन द मस्ट इज कंप्लीट विद द हैव टू, मस्ट जो होता है वो हैव टू के साथ यूज होता है। हैव टू जैसे एक, दिस इज़ वन अगेन मॉडल ऑक्सिलरी, जैसे हैव, हैज़ हम कंप्लीट प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हैव टू भी एक मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम करता है। एंड मस्ट इज शोइंग दैट इट शुड बी कंप्लीट, मस्ट जो होता है कंपल्शन के लिए होता है, जब कभी कोई काम है आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव टू कंप्लीट इट, यू मस्ट डू इट, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है, कंपल्सरी होता है, तो दैट टाइम यू हैव टू यूज़ मस्ट, ओके। मॉडल वर्ब जो होते हैं, डू नॉट ऑल द टेंसेस, डू नॉट हैव ऑल द टेंसेस, मॉडल वर्ब्स में पूरे के पूरे टेंसेस यूज़ नहीं होते। जैसे टेंस का हमें पूरा फॉर्मेट ही पता है कि लास्ट 3 वीडियोज़ में हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस किस तरह से काम करते हैं, तो वैसे फॉर्म्स मॉडल वर्ब्स के नहीं होते। मॉडल वर्ब्स टॉक ओनली द सम पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर एक सिचुएशन में यूज़ करते हैं, अगर वो यूज़ करेंगे तो टेंस का मतलब नहीं रहेगा। ये दोनों डिफरेंट इसलिए बिकॉज दे हैव, वो अलग अलग इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है, ओके, बोथ आर सिंपली डिफरेंट। तो लास्ट वन सेंटेंस वी कैन से दे कैन प्ले पियानो, दे कैन प्ले पियानो मीन्स हियर कैन इज एबिलिटी, ही कैन एबल टू, तो इसका मतलब ये है कि वो प्ले कर सकता है मतलब फ्यूचर में, अभी नहीं। तो जब मैं कहता हूँ कि ही कैन गुड टीचर, ही कैन टीच बेटर, तो ही कैन टीच बेटर मतलब वो मैं फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ, आई एम शोइंग द नियरेस्ट फ्यूचर, वो कर सकता है, मुझे कर नहीं रहा है अभी, कर सकता है, तो मतलब फ्यूचर में होगा, तो दैट इज़ वी कैन एक्सप्लेन लाइक दिस, दे विल एबल टू प्ले द पियानो इन द फ्यूचर, ये एबल टू फ्यूचर के बारे में बता रहा है, दिस जस्ट नियर अबाउट द फ्यूचर, ओके। यू मस्ट कम अर्ली, तो ये क्या हुआ, कल के बारे में, यू मस्ट कम अर्ली जो कल हुआ था, ओके। यू हैड टू कम अर्ली यस्टरडे, तुम्हें कल जल्दी आना चाहिए था या फिर आज जल्दी आना चाहिए था, इसके लिए तो इसलिए वो कंपल्शन किया है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, अगले दिन से, नेक्स्ट डे से तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा। यू मस्ट कम अर्ली, ये अगले वाले डेज के बारे में है, लेकिन जो घटना हुई वो पास्ट में हुई है, 2-4 दिन में लेट आया तो दैट आई वॉज लेट फॉर दिस डे, हैड टू अर्ली वन, ओके। थर्ड फॉर्म हम उसका देखेंगे, रूल क्या है, व्हाट डू दे एक्सप्रेस, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, हाउ टू एक्सप्रेस देम, ओके। टू अंडरस्टैंड इज बेटर वी आर गोइंग टू डिवाइड देम इनटू सम पार्ट्स, कुछ पार्ट में उसे डिवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है अगर उसे समझना होगा तो। द कैटेगरी है, 3 कैटेगरीज में उसे हम डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ दैट सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल, जो मॉडल एक सिंगल मीनिंग लेकर आते हैं, एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल्स। सेकेंड वन इज़ डबल कॉन्सेप्ट मॉडल, जो मॉडल ऑक्सिलरीज 2 मीनिंग लेकर आता है या डबल मीनिंग जिनका होता है वो डबल कॉन्सेप्ट वाले मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। और थर्ड जो होता है वो मॉडल इन पास्ट,
जो पास्ट की हुई घटनाओं के बारे में है, बट इट इज़ अ हाइपोथेसिस ऑफ द सिचुएशन, इट वॉज जस्ट हाइपोथेटिकल ऑफ द लास्ट इवेंट्स जो हुई है लेकिन होने वाली थी या फिर नहीं हुई या फिर कुछ उनमें बदलाव हुआ है, दैट इज़ टॉकिंग अबाउट द पास्ट एंड दिस आर द मॉडल्स इन द पास्ट। ऐसे कुछ है जो पास्ट के बारे में बताते, दे आर यूज टू एक्सप्रेस द सिचुएशन इन द पास्ट। ऐसे 3 मॉडल लॉजिक्स हम कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करते हैं टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट सिंगल, डबल कॉन्सेप्ट एंड मॉडल इन पास्ट, व्हाट दे आर, वो कौन से हैं वो भी देखना ज़रूरी है। तो कैटेगरीज, फर्स्ट कैटेगरी में जो आते हैं वो है सिंगल कॉन्सेप्ट वाले, जो है सिंगल, डबल एंड ट्रिपल मॉडल इन पास्ट। तो सिंगल कैटेगरी में आने वाले सिंगल कॉन्सेप्ट वाले जो है विल, माइट, शुड और टू, हैड बेटर, ये 4-5 जो है वो सिंगल कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। विल का एक ही मतलब होता है, शुड का एक ही मतलब होता है और टू एक ही मीनिंग के लिए यूज़ होता है, माइट एक ही मीनिंग के लिए यूज़ होगा एंड बेटर ऑल्सो यूज़ इन द सिंगल कॉन्सेप्ट, वन सिंगल कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। जबकि ये जो डबल कॉन्सेप्ट वाले हैं मे, मस्ट, वुड, शाल, कुड एंड कैन, ये डबल कॉन्सेप्ट लेकर आता है। अब डबल कॉन्सेप्ट कैसे कि 2 यूज़ अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कैन का बताया, तो कैन इज़ शोइंग द एबिलिटी इन द फ्यूचर ऑल्सो एंड कैन इज़ शोइंग द परमिशन ऑल्सो। ओके, कैन आई गो टू द वॉशरूम, ये जो सेंटेंस है वो परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन यू कैन डू, आई कैन डू इट, कैन आई डू इट, तो ये एबिलिटी के लिए तो डबल कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। ओके, जैसे मे होगा तो मे इट इज़ शोइंग द परमिशन ऑल्सो एंड इट इज़ शोइंग द एबिलिटी ऑल्सो समटाइम। इसलिए ये सबके जो डबल कॉन्सेप्ट आती है 2 मीनिंग लेकर आते हैं, देयरफॉर दे आर अ डबल कॉन्सेप्ट। एंड द पास्ट, वुड हैव हो सकता था, कुड हैव सॉरी होना चाहिए था, होना था, करना था, वुड हैव, कुड हैव मीन्स हो सकता था, माइट हैव वो भी हो कर सकते थे या हो सकता था, शुड हैव करना चाहिए था लेकिन किया नहीं है, मे हैव हो सकता था, अगेन मस्ट हैव द सेम, अगेन तुम्हें करना ही चाहिए था लेकिन किया नहीं है। दिस मॉडल इन द पास्ट आर शोइंग दैट विच सिचुएशन हैज़ नॉट कम्प्लीटेड इन टू द फ्यूचर टेंस, सॉरी पास्ट टेंस। पास्ट में फ्यूचर की बात की जाती है, मीन्स वॉट समथिंग हैज़ नॉट डन इन टू द past tense and showing the suggestions regarding to this. Okay, let's see the one. I hope you understand this one. तो एक एक करके हम उसे एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। सिंगल कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सिंगल कॉन्सेप्ट क्यों होते हैं, ये इसलिए विल जो है उसकी कॉन्सेप्ट है फ्यूचर, सिंपल है, वो फ्यूचर के बारे में बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल रोहित विल ट्रैवल टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक, वो न्यूयॉर्क जाने वाला है, ये सिंगल कॉन्सेप्ट है, दिस इज कंप्लीट अबाउट द फ्यूचर। माइट इज़ टॉकिंग अबाउट द स्मॉल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स जैसे हम कहते हैं कि पॉसिबिलिटी होती है, ये किसी बात की होने की जो शाश्वती होती है वो वाला होता है। माइट, राहुल माइट मूव टू कैनेडा सम डेज, शायद, ओके दिस इज़ वी यूज़ शायद वो वहाँ पे हो सकता है, सेटल हो सकता है। शुड इज़ अ रिकमेंडेशन या सजेशन, हम उसे जैसे कहते हैं भूमिका शुड गो टू द डॉक्टर, ये हम उसे सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, सजेस्ट करते हैं गो टू द डॉक्टर, दिस इज रिकमेंडेशन। और टू अ फॉर्मल रिकमेंडेशन, यहाँ पे और एक बात ध्यान में रखिए कि और टू एंड शुड बोथ आर वेरी इक्वल एंड बोथ आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, एक ही जैसे होते हैं। देन गो टू द अबाउट द फर्स्ट एड एंड लास्ट हैड टू बेटर, इट इज़ द वार्निंग होती है, आई हैड बेटर स्टडी और आई विल फेल द टेस्ट, ओके मुझे पढ़ाई करनी चाहिए नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, ये बताने के लिए हैड टू इज शोइंग द वार्निंग अबाउट द सिचुएशन, वार्निंग अबाउट द फ्यूचर समथिंग। तो दैट इज़ अ फर्स्ट सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल ऑक्सिलरीज। सेकेंड वन इज़ डबल कॉन्सेप्ट मॉडल ऑक्सिलरीज। तो वो डबल कॉन्सेप्ट वाले क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दोनों बताने जा रहा हूँ। तो मे एंड मे जो है पहले मैंने जैसे आपको बताया कि दिस इज़ अ परमिशन, मे इज़ फॉर द परमिशन एंड सेकंड उसका ही मीनिंग होता है गुड प्रोबेबिलिटी, जैसे कुछ होने की ये है, शायद हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। ओके, मे आई कम इन, ये पहला उसका सेंटेंस है, मे आई कम इन, ये रोज़ हम जो बोलते हैं वो वाला। और दूसरा वी मे विजिट मैक्सिको इन दिस समर, तो आप मैक्सिको को विजिट कर सकते हैं दिस समर में।
तो दिस इज़ ये एक उस फ्यूचर के बारे में कुछ जानकारी है, पहले से प्री डिटेक्शन है या फिर प्रेडिकेशन है। सेकेंड, मस्ट इज़ अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन, एंड दिस इज़ अजम्पशन। अजम्पशन मीन्स सपोज, ऐसा मान लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए होती है कि एवरीवन मस्ट पे द टैक्सेस, सबको टैक्स भरना ही चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी, दैट इज शोइंग द मस्टनेस। मस्ट मीन्स इट इज अ कंपल्सरी। देन सेकंड वन इज द अजम्पशन, शी डिडंट अराइव, शी मस्ट बी सिक, वो नहीं आई इसलिए वो शायद बीमार हो, सपोज कि बीमार हो सकती है, समझ में आता है। सेकंड लास्ट वन इज वुड, उसका पहला मीनिंग है पास्ट को यूज़ करता है, पास्ट में यूज़ होता है, दैट इज़ यूज टू अगेन, उसके बदले में यूज टू भी यूज़ किया जाता है। व्हेन आई वॉज यंग आई वुड प्ले द सॉसर, जब मैं यंग था तो मैं खेलता था, सॉसर खेलता था। एंड सेकंड वन इज़ दैट प्रेजेंट अनरियल, जो प्रेजेंट में अनरियल है। आई वुड बाय द कार बट आई कांट अफोर्ड इट, मैं बाय तो कर सकता हूँ लेकिन मुझे ये अफोर्ड नहीं होती, दैट इज शोइंग द अनरियल इन द प्रेजेंट, हो नहीं सकता इन प्रेजेंट में। आई होप यू अंडरस्टैंड, इसमें जो डबल मीनिंग है वो आपको जल्दी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। उन्हीं को वापस हम कंटिन्यू करते हैं। शाल, इट इज़ शोइंग, दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन यू मस्ट रिमेंबर कि छोटी छोटी बातें होती बट यू हैव टू क्लियर कर देम वन। मैं कभी कभी थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई नो दैट, बट मेरा जो टारगेट होता है कि दैट शुड बी कम्प्लीटली क्लियर टू यू। ओके, 4 बार वीडियो सुनने से अच्छा है कि एक ही बार वो वीडियो सुनिए और वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। शाल जो है वो फर्स्ट इसमें एजुकेटेड एक्सप्रेशन ऑफर करता है। इट मीन्स एक्सक्यूज़ मी आई शैल गो नाउ, शैल आई क्लीन इट, एक्सक्यूज़ मी शैल आई गो नाउ, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। 2 सेंटेंस यहाँ पे मैंने दिए हैं, शैल आई क्लीन इट, तो मैं क्लीन करूँ, दिस इज़ शोइंग द एजुकेटेड एक्सप्रेशन ऑफर, कुछ आप अच्छी तरह सजेशन ये देते हो। और दूसरा जो होता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, द कंपनी शैल पे ऑन जनवरी 1, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑब्लिगेशन है, देना चाहिए। ओके, कंपनी को पेमेंट जो है, सैलरी जो है वो 1 जनवरी को देना चाहिए, ये उसको दिया हुआ कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये दोनों उसके मीनिंग है। कुड इज़ अनरियलाबिलिटी, जैसे वुड का था वैसे अनरियलाबिलिटी। आई कुड गो इफ़ आई हैड अ टाइम, अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं चाहूँगा, ये अनरियल एबिलिटी है लेकिन दिस इज़ शोइंग द इनएबिलिटी, मतलब ये अनरियल है, अगर हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं होगा, रियलिटी नहीं है, इमेजिनेशन इज। कुड जो है पास्ट एबिलिटी, इज शोइंग द पास्ट में जो एबिलिटी थी वो वाला। शी कुड प्ले द पियानो नॉट एनी मोर, वो पियानो बजाती थी लेकिन अभी बिल्कुल नहीं, मतलब पास्ट में वो एबिलिटी थी अभी नहीं है, या फिर वो प्रैक्टिस नहीं करती। इफ सपोज शी डोंट हैव दिस वन, शी कुड नॉट। एंड लास्ट वन का जो है कैन, इट इज शोइंग द प्रेजेंट एबिलिटी, वी कैन स्पीक इंग्लिश, ये एबिलिटी है। और दूसरा परमिशन है, कैन आई हैव अ स्वीट, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कैन की 2 होती है, एक एबिलिटी के बारे में होता है और दूसरा होता है परमिशन, ठीक है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, मॉडल इन द पास्ट। मॉडल जो पास्ट में जो होते हैं वो सारे मॉडल इसमें आते हैं, ठीक है। दे आर मॉडल्स रेफर टू द एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट, जो कोई घटना पास्ट में हो चुकी है उनके बारे में वो, इनको हम एक एक करके जानेंगे। पास्ट में हो चुके हैं वो सिचुएशन के लिए इन्हें बताया जाता है। इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्यान में लीजिए। मॉडल ऑक्सिलरी होता है, यहाँ पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी हैव वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल में PPC V3 यहाँ पे आता है मॉडल। जैसे कि फॉर एग्जांपल इट मस्ट हैव बीन डिफ़िकल्ट डिसीजन, ठीक है, इट मस्ट हैव बीन अ डिफ़िकल्ट डिसीजन, तो मस्ट हैव ये पास्ट को प्रेजेंट करता है, एंड द बीन इज शोइंग द कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट। शुड हैव इन्वाइटेड हर टू देयर वेडिंग, दे शुड हैव बुलाना चाहिए था, ऐसा उसका मीनिंग है, ध्यान में रखिए। इट मस्ट हैव बीन अ डिफ़िकल्ट डिसीजन, शायद वो बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन हो सकता था। एंड दिस शुड हैव इन्वाइटेड हर टू देयर वेडिंग, उसे वेडिंग में बुलाना चाहिए था। ये घटी हुई घटना जो है पास्ट में उसको ही रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान में रखिएगा वापस से। और जैसे एक बार हुआ ही था, मेरे थोड़ा ध्यान में आया
कि जहाँ पे आप नॉट लगाते हो, तो नॉट लगाते बहुत स्टूडेंट जो है एक गलती करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करते हुए, वो इट मस्ट हैव नॉट बीन डिफ़िकल्ट डिसीजन ऐसा कुछ बनाते हैं। तो नॉट लगाते हुए वो सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी को ही लगता है, हैव को नहीं लगाना चाहिए। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, बदलता कुछ नहीं, लेकिन ग्रामेटिकली वो बिल्कुल मिस्टेक होती है, ग्रामेटिकल वो रॉन्ग होता है। तो आपका सेंटेंस अगर नेगेटिव बनाना तो नेगेटिव मस्ट बी लाइक दिस, इट मस्ट नॉट हैव बीन डिफ़िकल्ट डिसीजन, या फिर दे शुड नॉट हैव, या फिर शुडंट हैव इन्वाइटेड हर टू देयर वेडिंग। तो शुड को ही नॉट लगाना है, हैव को मस्ट को ही नॉट लगाना है, हैव को नहीं लगाना है। द नेक्स्ट वन इज, तो मॉडल ऑक्सिलरीज में एबिलिटी जो प्रेजेंट करते हैं, एबिलिटी प्रेजेंट करने के लिए जो होते हैं वो सारे होते हैं कैन। तो उसमें एक एक करके हम देखेंगे। कैन जो होता है वो एबिलिटी प्रेजेंट करता है। एक्सप्रेस द एबिलिटी इन द प्रेजेंट और इट्स जनरली आई कैन रन अ किलोमीटर फॉर मिनट्स। इट इज़ यूज फॉर द डिसीजन मेकिंग इन द फ्यूचर एबिलिटी। जैसे हमने पहले एक चार्ट में देखा कि कैन किस तरह से यूज़ होता है, तो ये एक सिचुएशन के लिए भी होता है, फ्यूचर में होने वाली सिचुएशन कि ही कैन मतलब वो कर सकता है, तो कर सकता है मतलब फ्यूचर की बात है, अभी नहीं। ओके, जैसे नियर से बहुत फ्यूचर के बारे में मैं बोल सकता हूँ। तो दैट इज शोइंग द फर्स्ट एक्सप्रेशन एबिलिटी इन द प्रेजेंट जनरली एंड द डिसीजन इन अबाउट द फ्यूचर एबिलिटी। वी कैन मीट एट द जिम टुमारो, तो हम जिम में मिल सकते हैं टुमारो। सेकेंड वाला वर्ब जो होता है मॉडल वर्ब, वो होता है कुड। एक्सप्रेस द एबिलिटी इन द पास्ट, कैन का ही पास्ट फॉर्म कुड है, ये भी ध्यान में रखिए। इट शोज द एबिलिटी इन टू द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, इन सेंटेंस each express the ability in the present, future and in the general hypothetical situation। तो एक कोई सिचुएशन अगर हो गया hypothetical, that time we can use the could in the present also to show the future action। तो वो क्या होता है, if only you could come, सिर्फ तुम ही आ सकते हो तो आना। ओके, that is showing the hypothetical situation, आ सकते हो तो आना, मतलब that is showing the future one एन एबिलिटी इन दिस। कुड हैव, जैसे मैंने आपको बताया कि ये डबल कॉन्सेप्ट पास्ट के बारे में बात करने वाला है, तो दैट इज़ कुड हैव। जब हैव लगाते हैं तो एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट हाइपोथेटिकली, जो पास्ट की जो एबिलिटी थी उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज़ शोइंग दैट द एक्शन कुड नॉट कम्प्लीटेड इन द पास्ट टाइम। ओके, आई कुड हैव रीच टू द मुंबई, मैं मुंबई पहुंच सकता था, ये सिचुएशन को ये ले सकता है। पास में जो हो गया, टाइम चला गया, बट ही कुड नॉट रीच टू द मुंबई, ही डिडंट रीच टू द मुंबई, इट्स शोइंग इट वन। तो उसके साथ हम बी एबल टू एंड इन्फिनिट टू लगाते हैं। एबल टू जब लगाते हैं वो V3 के बाद ही लगाना ज़रूरी होता है। परमिशन देने वाले कौन से होते हैं, तो परमिशन लेने वाले मे, तो आपने पहले से रोज़ यूज़ करते हो, मे आई गो आउट और मे आई कम इन वगैरह, ये जो आप सेंटेंस यूज़ करते हो, दैट ऑल। सेकंड वाला था कुड यू रिपीट प्लीज़, तो आप रिपीट करना करेंगे, ये हम उनको पूछते हैं। कैन अगेन, कैन आई गो टू द वॉशरूम। दिस मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस गिवन द परमिशन नाउ और फॉर द फ्यूचर। ये जो तीन है, ये तीनों परमिशन देते हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में कुछ जो होने वाला है या फिर मैं मांगता हूँ, तो इसके लिए वो पोलाइटली होता है, परमिशन होती है, जो मैं हक से नहीं मांग सकता, पोलाइटली मांग सकते हैं। एंड द फॉर द पास्ट ऑफ कुड और बी अलाउड, आई कुड गो आउट विथ माई फ्रेंड्स, आई वॉज अलाउड टू गो विथ माई फ्रेंड्स। ओके, मैंने अलाउड किया है इसलिए वो हो सकता है। एडवाइस के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं शुड। शुड इज़ फॉर द एडवाइस, शुड एंड इन्फिनेटिव। ओके, इन्फिनेटिव मीन्स फॉर एग्जाम्पल, शुड नॉट मीन्स दिस इज़ अ नेगेटिव फॉर्म। उसके साथ हम और टू भी यूज़ करते हैं, और टू और शुड ये दोनों एक ही मीनिंग है। मतलब बहुत पहले के ज़माने में, पहले मीन्स 1760 जो शेक्सपियर के ज़माने या फिर नियर अबाउट द अलेक्जेंडर पोप के ज़माने तक शुड और टू का इस्तेमाल होता था, बट अभी बहुत ज़्यादा और टू का इस्तेमाल नहीं होता, शुड का ही मैक्सिमम यूज़ होता है। दिस वर्ब्स आर यूज फॉर गिविंग द एडवाइस नाउ इन द फ्यूचर एंड द जनरल ऑब्लिगेशन। जनरल में जब हम एडवाइस किसी को देते हैं या फिर किसी को फ्यूचर का एडवाइस देते हैं, दैट टाइम वी यूज़ द शुड।
तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, मीन्स यू शुड डू द स्टडी, यू शुड कॉल द पुलिस, ये जो सारे सेंटेंसेस हैं दैट्स गिविंग द जनरल एडवाइसेस. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड गो टू द डॉक्टर नाउ, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये है. ही ought टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, दोनों का मीनिंग एक ही है. दे शुड नॉट बाय थिंग्स इफ़ दे हैव लिटल मनी, वो उन्होंने पैसे इतना खर्च नहीं करना चाहिए अगर उनके पास थोड़े ही पैसे हैं. जैसे लॉकडाउन की पीरियड में आपको एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा. हाँ, एक बात और मैंने कही थी वीडियो के फॉर्म के टाइम में, तो टू नाम का जो इन्फिनेटिव है उसके साथ नहीं लगता. अब टू नाम का इन्फिनेटिव सिर्फ ought टू के साथ ही लगता है, ऐसा कोई नहीं है. हैव टू, हैड टू, ये जो 2-3 है वो ही उन्हीं के साथ वो टू का इन्फिनेटिव लगता है, लेकिन इन मॉडल के साथ टू नहीं लगता. जैसे कि शुड है, शुड के साथ इन्फिनेटिव नहीं लगा तो वो गो के बाद टू लगा है. ऐसा नहीं हुआ कि यू शुड टू गो द डॉक्टर नाउ, ऐसा नहीं है, यू शुड गो टू द डॉक्टर, ये सही सेंटेंस हमारा आता है. अगेन, दे शुड नॉट बाय द थिंग्स, इसमें भी हमने टू का इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं किया है. सर्टेनिटी जो प्रेजेंट करते हैं वो सर्टेनिटी मीन्स अ पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर और द प्रेजेंट एंड द पास्ट. जो सिचुएशन होती है उसके सर्टेनिटी कैसे होती है, तो मस्ट इज़ वन, मस्ट, कांट और कुड नॉट, ये तीनों के तीनों एक ही जैसे यूज़ किए जाते हैं. ओके, एक्सप्रेस द सर्टेनिटी अबाउट नाउ और द फ्यूचर, फ्यूचर और पास्ट के लिए, फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए, सिचुएशन के लिए मस्ट, कांट और कुड नॉट ये प्रेजेंट करते हैं. दैट मस्ट बी न्यू मैनेजर, ये शायद बहुत न्यू मैनेजर हो सकता है. शी कांट बी सो ओल्ड, शी लुक वेरी यंग, मीन्स वॉट, शी कांट बी सो ओल्ड मीन्स वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा एजड नहीं है. उसके बाद मस्ट, कांट, कुड नॉट हैव, पास्ट पीपीसी अब लगाते हैं तो वो पास्ट के बारे में बात करने लग जाता है. एक्सप्रेस सर्टेनिटी अबाउट द पास्ट, जब प्रेजेंट के साथ वो V3 नहीं लगाते, V1 लगाते तो वो प्रेजेंट के बारे में बात करता है. V3 लगाए तो दैट टॉक्स अबाउट द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, शी मस्ट हैव बीन इन अ लॉट ऑफ पेन, वो शायद बहुत दुख में होगी, ये हम पॉसिबिलिटी दर्शा सकते हैं, सर्टेनिटी दिखाते. एंड दे कुड हैव बीन ऑन हॉलीडे फॉर सो लॉन्ग, शायद वो बहुत देर से हॉलीडे पे हो सकते थे, ये हम पास्ट के बारे में बताते हैं. दिस इज शोइंग द पॉसिबिलिटी इनटू द पास्ट ओनली. शुड और ought टू एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी अबाउट नाउ द फ्यूचर एंड जनरली ought टू फील बेटर इन द फ्यू डेज, ये बेटर होता है कि दे आर यूज इनटू द फॉर द फ्यूचर वन. ओके, मॉडल डिग्रीज ऑफ सर्टेनिटी वो कंटिन्यू हम उससे करेंगे. और कुड, मे, माइट एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी अबाउट द नाउ द फ्यूचर और द जनरली. द फर्स्ट वन इज देयर, यू शुड टॉक टू योर डॉक्टर बिकॉज दैट डाइट माइट बी डेंजरस, ये हम पॉसिबिलिटी ही दर्शाते हैं वहाँ पे मॉडल डिग्री के लिए. कुड, मे और माइट ये तीन यहाँ पे ऐसे यूज़ हो सकता है. अब यहाँ पे जैसे हमने अगेन, अब यहाँ पे हमने माइट का इस्तेमाल किया है. ओके, द फर्स्ट सेंटेंस वी टॉक लाइक दिस, यहाँ पे शुड लगता है, लेकिन यू शुड टॉक विद द डॉक्टर, सजेशन. सिचुएशन क्या है, सर्टेनिटी क्या है, दैट माइट बी डेंजरस, तो ये माइट भी हमने यूज़ किया है यहाँ पे. ओके, द सेकेंड सेंटेंस, आई शुड कॉल द राज, ही कुड हेल्प यू एट दिस टाइम, तो यहाँ पे मैंने भी सर्टेनिटी यूज़ की है एंड शोइंग द पॉसिबिलिटी दैट ही कैन बी पॉसिबल टू हेल्प यू, दिस इज द पॉसिबिलिटी दैट ही कैन हेल्प यू. थर्ड सेंटेंस इज देयर, go and try to meet him, he might be surprised to see you, उसे जाकर मिलो, तो might be surprised ये पॉसिबिलिटी है एंड अगेंस्ट सर्टेनिटी. दूसरा जो होता है कुड, मे, माइट एंड हैव पार्टिसिपेट लगाए तो पास्ट के बारे में, ये जो ऊपर वाला बताता है दिस टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट इवन. एंड जब हम हैव लगाते हैं, हैव लगाते ही वो पास्ट की तरफ चला जाता है. जिस हैव और पीपीसी लगाते ही वो पास्ट के बारे में बताता है. For example, that might have been the doctor who ranged while we have out. Okay, rang while the out. तो that might have been ये वहाँ पे आ गया.
दूसरा, ही माइट हैव बीन स्मॉल बॉय हु पंक्चर द टायर. ऋतिक माइट हैव बीन विद फ्रेंड्स लास्ट नाइट. मॉडल डिग्रीज विद सर्टेनिटी, कंटिन्यू जो होते हैं वो, अगेन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट विथ हैव, कुड और माइट हैव with a PPC. Express the possibility about the hypothetical past. If you didn't follow your doctor's advice, you could have become quite ill. तो यहाँ पे हम सजेस्ट करते हैं कि if you don't follow your doctor's advice, okay, you could have become the quite ill. ये एक again hypothetical situation in the past. ये होता है कि तुमने शायद तुम्हारे डॉक्टर का माना नहीं होगा, तो यू आर गोइंग टू इल. इफ़ यू डिडंट कंप्लीट योर होमवर्क, यू माइट हैव फेल इन द एग्ज़ाम. अगर तुमने होमवर्क नहीं किया होता तो किया नहीं होगा, तो इसलिए तुम फेल हो सकते थे, नहीं किया होता तो. शी माइट हैव नॉट कम, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, शी माइट नॉट हैव कम इन द पार्टी इफ़ आई डिडंट कॉल हर. तो कि यहाँ पे हैव के बाद नॉट नहीं आता, माइट के बाद नॉट आता है. ओके, इफ़ आई डिडंट कॉल हर, अगर मैंने कॉल नहीं किया तो वो आएगी नहीं. शुड ought to have and past again. Express the probability about the past. The pressures out to have disappeared in the future few days. सेंटेंस सारे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यू शुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम एट योर लेवल. तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था, करना चाहिए था, अपने हिसाब से वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए था. दे शुड नॉट हैव माइट विद टीचर. उन्होंने टीचर के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए थी. ये सजेशन है. दिस इज गिविंग द सजेशन इन टू द पास्ट, वॉट हैपन इन टू द पास्ट एंड नॉट बी एक्सपेक्टेड इन टू प्रेजेंट. Model auxiliaries used to the criticism. How should the criticism इसलिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. जो घटना हो चुकी है, वो घटने के बारे जो इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट के बारे में हम कहते हैं कि दिस शुड नॉट बी हैपन इन टू द प्रेजेंट. ये नहीं होना चाहिए था. शुड हैव एंड पास्ट PPC or to have again PPC. For example, these forms expressed a criticism of the past behavior. जो पास्ट पे जो बिहेवियर हुई है, पास्ट पे जो घटना हुई, उसकी एक क्रिटिसिज्म होता है. दिस इज जस्ट अ वन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वन, कि उसका एक वो कहते हैं दिस इज जस्ट इवेल्युएशन. ओके, व्हाट हैपन एग्जैक्टली एंड व्हाट शुड नॉट हैपन इन दैट टाइम. फॉर एग्जाम्पल, ही ought to have made more effort. तो उसे ज़्यादा एफर्ट करने चाहिए थे मतलब किए नहीं है, कुछ हुआ है, समथिंग इज हैपन देयर वेरी रॉन्ग, एंड देयरफॉर वी से दैट ही ought to have made more efforts in the past. उसे करना चाहिए था, अगर ये करता तो शायद ऐसा नहीं होता. नेक्स्ट वन सेंटेंस कैन बी शो दिस. ही शुड हैव ईटन मोर बिफोर गोइंग आउट. बाहर जाने से पहले उसने पूरा खाना खाना चाहिए था, ज़्यादा खाना चाहिए था. दिस इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. आई होप आपको वो सारे समझ में आ रहे होंगे. एंड दिस मॉडल्स ऑब्लिगेशन एंड द नेसेसिटी के लिए कुछ होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट मस्ट हैव नीड. ओके, मस्ट हैव टू एंड नीड टू, ज़रूरत है. एक्सप्रेशन ऑब्लिगेशन एंड द नेसेसिटी. आई मस्ट हैव टू, नीड टू स्टडी मोर फॉर द एग्ज़ाम. देन डिडंट वॉन्ट टू हैव एंड नीडंट नॉट. ये दोनों अपोजिट है. अगर पॉजिटिव होता है तो ऊपर वाले, नेगेटिव होते तो नीचे वाला पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं. एंड अगेन हैड टू एक्सप्रेस टू द पास्ट एप्लीकेशन. वो करना चाहिए था, करना था. ओके, ही हैड टू स्टडी हार्ड फॉर दिस एग्ज़ाम. उसने एग्ज़ाम के लिए मेहनत करता था या करना पड़ता था, बहुत करना पड़ता था. ऑब्लिगेशन है, करना ही होता था. अगर हैड टू यूज़ करते हो तो हैड टू मीन्स वी हैव टू, अभी करना पड़ता है, ये होता है. एंड नीडंट हैव पास्ट एक्सप्रेस अबाउट द पास्ट ऑब्लिगेशन, करने की ज़रूरत नहीं थी. दे नीडंट हैव गॉन टू द शॉप.
उन्हें शॉप जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी. देयर वॉज अ प्लेंटी ऑफ फूड इन द फ्रिज. फ्रिज में बहुत सारा फूड पड़ा हुआ था. दैट वी कैन एक्सप्रेस विद दिस. आई होप कि आपको सारे समझ में आएंगे. एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस ऑल वन, you can repeat the video and listen it properly again. Thank you.